Hello everyone, today we'll read or have a short discussion on what is language of paradox that will give you a quick recap during your exams. So language of paradox को समझने के लिए हमें ये समझना होगा पहले कि what is paradox. What is paradox को समझना है तो we need to understand what is paradoxical statement. Paradoxical statement को समझने के लिए तो example तो चाहिए होगा ना. So I'm giving you 3 examples. पहला example is all I know is I know nothing. दूसरा all I say is always a lie. तीसरा आई हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड. इन तीनों स्टेटमेंट में कुछ सिमिलैरिटी नजर आई. इनमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन है जैसे कि सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. दूसरा इट हैज सोफिस्ट्री. तीसरा इट्स ह्यूमरस. चौथा इट इज रेशनल एंड रीजनेबल. एंड पांचवा इट्स इंटेलेक्चुअल. सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स. नाउ विल रीड अबाउट व्हाट इज पैराडॉक्स. Paradox is a condition or a statement that seems impossible or difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स में समझाया, दो अपोजिट फैक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के किसी सिचुएशन या किसी स्टेटमेंट में होने के कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं. Now, what is language of paradox? Language of paradox in literary theory is an essay written by an American literary critic and professor, Clent Brooks. Clent Brooks is very well known for his contribution to new criticism during the mid-20th century. His most famous work is The Well-Wrought Urn, which studies poetry, modern poetry, and the tradition. And his work focuses on ambiguity and paradox to understand poetry. His writings helped to formulate formalist criticism, emphasizing the interior life of a poem. His writings helped to formulate formalist criticism, emphasizing the interior life of a poem and codifying the principle of close reading. तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पोएम के अंदर की लाइफ जो होती है ना, पोएम को बहुत गौर से पढ़ने की कॉन्सेप्ट को शुरू करा था. And he also focused on the principle of close reading. हर चीज़ को साइड में रख के एक चीज़ को बहुत क्लोजली पढ़ने के तरीके को इन्होंने एम्फसाइज करा था. Now he advocates, Clent Brooks advocates the centrality of paradox as a way of understanding and interpreting poetry, and he also says it is a language appropriate and inevitable to poetry. You cannot understand poetry without the language of paradox. Paradox is not merely a literary device, so language of poetry can also be called the language of paradox. Here he also explains how poet conveys his thoughts and ideas by using a literary device like paradox indirectly without employing direct statements. So यहाँ पे पोएट पैराडॉक्स यूज करके अपने थॉट्स एंड आइडियाज को इस तरह कन्वे करता है, इनडायरेक्टली कन्वे करता है, जो कि वो डायरेक्ट शब्दों में नहीं बोलता लेकिन फिर भी हम समझ जाते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है. Then comes he actually uses, यहाँ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट जो है, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, ये हम समझ गए. सो नेक्स्ट कम्स, हम ये समझेंगे कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज टोटली अपोजिट टू साइंटिफिक लैंग्वेज बिकॉज पैराडॉक्स स्प्रिंग्स फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ पोएट्स लैंग्वेज. एक पोएट के अपने लैंग्वेज से ऑटोमेटिकली पैराडॉक्स स्प्रिंग करता है, ऑटोमेटिकली पैराडॉक्स जनरेट होता है. इसीलिए साइंटिफिक लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ पोएट्री दो अलग चीज़ें हैं. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज पोएट कंस्ट्रक्ट्स हिज लैंग्वेज एज ही गोज एंड डिफाइंस हिज ओन रूल्स. वो अपने रूल्स खुद बनाता है अपने पोएम्स के लिए, जिसके कारण लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज डिफरेंट फ्रॉम साइंटिफिक लैंग्वेज. Now, use of paradox by poets in their poems helps to achieve a connotative meaning which makes the poem very sophisticated. Now, छिपकली created disturbance, I'm sorry. उसके बाद आता है, where was I? Yes. तो it helps to achieve a connotative meaning. यहाँ पे Clent Brooks has also highlighted that very famous poets like William Wordsworth, who were known for the simplicity of their poems, have used paradoxical statements in their works like lines written upon the Westminster Bridge, where he compares London to be a natural beauty. हम सबको पता है लंदन natural beauty नहीं है, it is a man-made beauty. तो वहाँ पे वो पोएट बोलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मैन इज द क्रिएशन ऑफ नेचर. अब नेचर ने मैन को बनाया, मैन ने लंदन को बनाया, तो क्या ही फर्क बचा, लंदन इज अ नेचुरल ब्यूटी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन. सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री. इन द राइटिंग द ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज वन, बट जो मीनिंग्स निकल रहे हैं ना उसमें बहुत कई तरह के मीनिंग्स निकल रहे हैं. दैट इज अनदर एग्जाम्पल. तीसरा एग्जाम्पल है पोएम कैननाइजेशन रिटन बाय जॉन डन. जॉन डन का जो पोएम था कैननाइजेशन, उसमें लवर ने अपने फिजिकल लव को सेंटली लव से कंपेयर किया है, अवे फ्रॉम द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जस्ट लॉस्ट इन ईच अदर.
वो अपने एक दूसरे के अंदर पूरी दुनिया ढूंढ चुके हैं, वो एक दूसरे के अंदर इतने खोए हुए हैं कि उन्हें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ लास्ट कम्स Brooks believes the very structure of poetry is paradox, ignoring the other subtleties of imagination and power that the poet tries to bring to their poems. Now, defining poetry as uniquely a language of paradox actually helps people it. Sorry. मेरा थोड़ा सा distraction हो गया. Now, explaining or defining poetry as uniquely a language of paradox by Glenn Brooks ignores the importance of paradox in everyday language and discourse, including scientific discourse, जिसमें उन्होंने पहले ही क्लेम किया था कि इट इज़ अपोज टू पोइट्री. साइंटिफिक लैंग्वेज और पोइट्री का जो लैंग्वेज है ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. एंड अगर इतना सा भी समझ में आया या पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट करके ज़रूर बताना यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ आई एम टीचिंग और आई नीड टू इम्प्रूव, या फिर अगला टॉपिक क्या होना चाहिए. आई होप यू गाइज शो अ लॉट ऑफ लव टू मी. थैंक यू.